Hello everyone. So today I'm going to start new chapter number 7, Turkish Delight. Here you could see a small note for you, that is fantasy. It is a fictitious story written by C.S. Lewis. So fantasy means which is not real, which we have the writer have imagined and he wrote the entire story. So let's get started. It is a very interesting story, and this story is basically based on picture. You could see that movie Narnia. Yes, this is a small excerpt of that entire picture. So let's start. Here is the introduction of the chapter before we start. In the middle of World War II, dear children, I think you may know about it. There was two World War One and World War Two. So here it is talking, they are talking about World War Two. Sibling means who are brother and sisters. है ना, आपके जो भाई बहन होते हैं, they are called the siblings. Peter, Suzanne, Edmund and Lucy Pevensie are sent away from London to live with a professor in English countryside. Means they all were sibling, Peter, Suzanne, Edmund, Lucy Pevins. So they all were brother and sisters, and because of World War, might be their family might be feeling that they were not secure, so they were sent to London, and with whom to live with a professor in English. He was a professor of English, and where countryside means it is the outer, countryside means the outer part of any town. While exploring the large house in which the professor lives, Lucy, the youngest child, discovers the magical world of Narnia. Upon accidentally entering a wardrobe and meets many characters there. So what happened? The professor's house was very huge. So while exploring means नई नई जगह को देखना, उसके बारे में जानना. So while exploring, जब वो explore कर रहा था that large house, so where the professor means the whose house? This is the house of that professor. Lucy, who is Lucy? The youngest child. मतलब भाई बहन में she was the youngest. Discovers the magical world. Magical world of what? Narnia. And how she discovered? Accidentally, मतलब गलती से, मतलब ऐसा कोई planned नहीं था. Accidentally and कैसे? Entering a wardrobe. Now what is wardrobe? Wardrobe means अलमारी. And meets many character. और वहां जाके what she found? So many characters are there. बहुत सारे उसमें लोग हैं. लोग means not इंसान, means of different character there, including a faun called Mr. Tumnus. Means here Mr. Tumnus is also one of the character in Narnia. Her older sibling don't believe her, and after coming back from Narnia, जब वो वापस आती है, she used to describe everything in front of her sibling, but nobody believe her. कोई मतलब उस पर विश्वास ही नहीं करता कि ऐसा क्यों, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है ना कि आपके घर में ऐसा हो सकता है. आप किसी कोई अगर बोले पता है मैं अलमारी के अंदर घुसा और वहां पे दूसरा वर्ल्ड था नार्निया का, तो आप कभी यकीन करोगे? नहीं. तो इन द सेम वे उसके जो ओल्डर मतलब उससे जो इमीडिएटली जो बड़ा था एडमंड, वो कभी उस पर यकीन नहीं किया, बिलीव ही नहीं किया. Edmund secretly follows Lucy into the wardrobe and because उसको लगा कि ऐसा क्या है, क्यों ऐसा बोल रही है वो, तो one day he used to follow him, उसका पीछा किया और उसने क्या देखा कि लूसी एक secretly मतलब छिपा हुआ एक रास्ता है wardrobe में, अलमारी में, and finds herself in Narnia too. एंड फिर क्या हुआ, उसका पीछा किया और वो लूसी को फॉलो करता गया एंड वो भी वार्डरोब के अंदर गया. उसने क्या देखा कि अरे वो भी खुद नार्निया में आ गया. सो व्हाइल लुकिंग फॉर हर ही मीट्स अ मिस्टीरियस वुमन ऑन अ स्लेज ड्रिवन बाय अ ड्राफ्ट. मतलब उसने क्या देखा व्हाइल एंटरिंग इनटू द नार्निया, उसने नार्निया जैसे वो एंटर किया उसने क्या देखा, ही मीट्स अ मिस्टीरियस मतलब जो अनसुलझी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है. तो ऐसे वुमन को उसने देखा
मतलब बहुत ही अजीब सी थी, और इसमें थी शी वॉज ऑन अ स्लेज। स्लेज मतलब क्या होता है, ये अक्सर जो जो बहुत बर्फ वाला एरिया है वहां पे क्या होता है, गाड़ी वगैरह नहीं चलती है, तो यहाँ पे एक जो पुल करने वाला एक जो व्हीकल, एक जो गाड़ी होती है खींचने वाली जो गाड़ी है, जिसको आप बोल सकते हैं भेड़, या फिर जो जंगली कुत्ते होते हैं, जो द एनिमल्स हु कुड इजिली रिसाइड इन कोल्ड एरिया, दे यूज टू पुल इट, वो उसको खींचते हैं, वही है स्लेज। आपने देखा होगा कि कैसे, जैसे कि स्लेज यानी कि आपने क्रिसमस में जो सेंटा क्लॉस है वो स्लेज में जाते हैं, आपने उसमें देखा होगा, उसमें कोई व्हील वगैरह नहीं होते, पहिए नहीं होते है ना, एंड दैट होल इज बीन पुल्ड बाय इन सम एनिमल्स, एनिमल उसको खींच के लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वुमेन ऑन ए स्लेज ड्रिवन बाय अ ड्रॉफ्ट, ड्रिवन इज व्हाट, इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ ड्राइव, ड्राइव यानी चलाना, तो ये यहाँ पे कोई एनिमल नहीं है, उसको कौन ड्राइव कर रहा था, ड्रॉफ्ट। ड्रॉफ्ट मतलब क्या, इंसान जो बहुत ही, जिसको हम बहुत ही हाइट में कम होते हैं, जैसे कि बॉनी, उनको हम बॉने बोलते हैं, तो इंग्लिश में व्हाट वी से ड्रॉफ्ट। शी कॉल्स herself द क्वीन ऑफ नानिया, एंड वो वुमन अपने आप को क्या बोलती है, दैट शी इज द क्वीन ऑफ नानिया। सो लेट्स रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो आपको एक ब्रीफ सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मिल गया कि हु इज द क्वीन ऑफ नानिया, है ना, और वार्डरोब के अंदर क्या होता है ना। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंड। बट What are you? said the queen again. अभी ये जो स्टोरी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जस्ट इमेजिन कि वो लूसी का उसने पीछे किया सीक्रेटली, एंड वो वार्डरोब से अंदर जाते ही what happened, that Edmund came to that world of Narnia, और नार्निया में सबसे पहले उसने किसको देखा, that queen of Narnia, that mysterious woman. Now that mysterious woman is asking few question to Edmund. But what are you? मतलब कौन हो तुम? Said the queen again. Queen means who herself tells as a queen of Narnia. तो यहाँ पे queen यानी queen की जो नानिया की जो queen है, that mysterious woman. Are you an overgrown dwarf? उसने क्या बोला, overgrown मतलब means क्योंकि वो बच्चा था तो उसका हाइट नेचुरली थोड़ा सा कम था, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम ड्रॉप से थोड़े से यानी तुम ड्राफ्ट हो, और ओवरग्रोन हो मतलब थोड़े से बड़े हो गए हो, that has cut off its beard, जिसने अपनी दाढ़ी वगैरह शेव कर ली है। अब देखो वो एडमिन क्या बोलते हैं, नो योर मैजेस्टी, said Edmund, I am a boy. उसने क्या बोला, मैजेस्टी मैं कौन हूं, मैं तो एक लड़का हूं, मैं कोई ड्रॉफ नहीं हूं। A boy, said she, मतलब वो थोड़ी सी, बिकॉज उसने कभी ऐसा देखा नहीं था, तो उसने क्या बोला, she was surprised, ए बॉय, डू यू मीन यू आर ए सन ऑफ एडम। तो उसने क्या बोला, क्या तुम लड़के हो, क्या तुम एडम के बेटे हो। एडम यानी आपने सुना होगा कि हमारा जो दुनिया स्टार्ट हुआ था एडम और ईव, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एडम यानी कि इंसान थे, यानी तुम इंसान के बच्चे हो, ऐसा वो क्वीन बोलने की कोशिश कर रही है। एडमंड स्टूड स्टिल, उसने कुछ नहीं बोला, एडमंड चुप था। सेइंग नथिंग, ही वाज टू कंफ्यूज्ड बाय दिस टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन मीन्ड। तो अभी ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ऑल ऑफ अ सडन उससे पूछा गया, डू यू मीन यू आर द सन ऑफ एडम, तो वो थोड़ा सा पजल्ड हो गया था, इसलिए वो कुछ आंसर नहीं कर रहा था। आंसर मी, सेड द क्वीन, और क्वीन को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर नहीं किया, तो उसने क्या बोला, आंसर मी और आई शैल लूज माई पेशेंस। आर यू ह्यूमन। अब देखो उसको लग रहा होगा कि आई शुड चेंज माई क्वेश्चन, क्योंकि पहले उसने क्या बोला था कि डू यू मीन यू आर ए सन ऑफ एडम, बट अभी उसने क्या बोला, आर यू ह्यूमन, क्या तुम इंसान हो, जल्दी से बोलो, नहीं तो मैं क्या होगा, अपना पेशेंस मैं लूज कर दूंगी, यानी मैं अपना धैर्य खो दूंगी। यस योर मैजेस्टी, सेड एडमंड। तो अब उसको क्वेश्चन समझ में आया, एडमंड ने क्या बोला, हाँ बिल्कुल मैं इंसान हूं। एंड हाउ प्रे डिड यू कम टू एंटर माई डोमिन्स। तो उसने क्या बोला, क्या प्रे यानी कि क्या मीन्स, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मीन्स मतलब प्लीज तुम ये बता सकते हो कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे हो, कैसे एंटर हुए इन माय डोमेन, यानी कि मेरे किंगडम में, मेरा जो जहां पे होल्ड है, यानी मेरा जो राज्य है वहां पे तुम कैसे पहुंच गए। प्लीज योर मैजेस्टी आई केम इन थ्रू अ वार्डरोब। उसने क्या बोला कि मैजेस्टी, मैं ये मैजेस्टी क्यों बोल रहे बार बार, बिकॉज शी इज द क्वीन, और
बाय रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के लिए वो हम मैजेस्टी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, योर मैजेस्टी, मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा, थ्रू अ वार्डरोब, मैं अलमारी से होते हुए यहाँ पहुंचा। अ वार्डरोब, व्हाट डू यू मीन, अलमारी, ये भूलना क्या चाहते हो? क्वीन भी थोड़ी सी पजल्ड हो गई थी। अब देखो एडमंड क्या बोला, आई ओपन द डोर एंड जस्ट फाउंड माई सेल्फ हियर योर मैजेस्टी, सेड एडमंड। एडमंड ने बोला, हाँ मैंने दरवाजा खोला और खुद को यहाँ पाया, सो सिंपल। देखो अब क्या होता है। हा, said the queen, speaking to herself. हा, ये भी कैसा हो सकता है? ऐसा वो मन में ऐसा वो अपने आप बड़बड़ा रही थी। A door, एक दरवाजा, a door from the world of men. अब सरप्राइज हो गई। अब वो क्या बोल रही, क्या एक दरवाजा जो इंसान की दुनिया से आता है? I have heard of such things. मैं पहले भी मुझे लग रहा था कि ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। ऐसा कौन सोच रही है? क्वीन। दिस में रेंच ऑल, रेंच यानी सब टूट फूट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या इंसान इतने आराम से आ सकते हैं? ओ नो, फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कौन सोच रही है? दैट क्वीन ऑफ नानिया, दैट मिस्टीरियस वुमन। बट ही इज ओनली वन एंड ही इज इजीली डील्ड विथ। उसने क्या बोला, लेकिन मुझे उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक है और मैं इससे आराम से डील कर सकती हूँ। She rose from her seat and looked Edmund full in the face. Her eyes, तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठी and looked Edmunds, यानी उसके चेहरे पे, एडमंड के चेहरे को देखा, full in the face यानी पूरे उसका जो कंसंट्रेशन था क्वीन का पूरे एडमंड के चेहरे पर था, उसकी आंखों पे, फ्लेमिंग and raised her wand, मतलब अब इसको देख के उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। किसको? द क्वीन ऑफ एडमंड। फ्लेमिंग यानी उसके ऐसा लगा था उसको आंखों में से आग निकल रहा है। एंड रेज्ड हर वैंड मींस, देखो आपने देखा होगा परियों के पास या जो चुड़ैल होते हैं उनके पास एक डंडा होता है उनके हाथ में, देखना हमेशा, तो उसी को वैंड बोल रहे हैं। तो उसने क्या किया, अपने वैंड को उठाया। यहाँ पे आप फोटो भी देख रहे होगे, क्वीन के हाथ में जो है ना ये वैंड है ना, तो उसने उसको उठाया। Edmund felt sure that she was going to do something dreadful, but he seemed unable to move. तो एडमंड जैसे उसने देखा कि क्वीन ऐसा अपना वैंड उठा के, अपने हाथ उठा के कुछ तो भी करने वाली है, तो एडमंड बहुत ही घबरा गया था। उसको लगा दैट क्वीन इज डेफिनेटली गोइंग टू डू समथिंग ड्रेडफुल, वो कुछ तो भी ऐसा भयानक कुछ करने वाली है। एंड उसको लग रहा था कि मैं भागूं, बट यहाँ पे क्या हो गया था, बट ही सीम्स टू बी अनेबल टू मूव। देखो उसको कैसा लग रहा है, उसको लग रहा है कि मैं भागूं दौड़ूं, बट वो यहाँ पर दौड़ नहीं पा रहा है। देखो बच्चों, आप लोग को भी लगता होगा, आप सपने में देख रहे हैं आपके पीछे गाय या कोई जो भी डॉगी या कोई जो भी एनिमल आपके पीछे दौड़ रहा है, एंड यू आर ट्राइंग टू शाउट बचाओ मुझे, और आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि आप दौड़ नहीं पा रहे हो, है ना। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो भी कंट्रोल हो रहा है ना। तो वो तो सपना है, बट यहाँ पे सच में ऐसा कुछ मैजिक हुआ था, है ना। और वो क्योंकि यहाँ पे वो हिल नहीं पा रहा है, ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग बट ही इज नॉट एबल टू। एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दैट वॉन्ड, है ना। इसने जो वैंड है ना, वैंड को उठाया था इसकी वजह से। देन शी अपीयर टू चेंज हर माइंड। अब कुछ सोच के उसने वो वैंड को उठाया था, बट फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और उसने अपना दिमाग यानी अपना जो ओपिनियन है उसने चेंज किया, अपनी जो थिंकिंग है कुछ गलत करने की, इसको उसने चेंज किया, और तुरंत वो बदल गई यानी बाहर से नहीं बदली, शी वॉज लाइक दैट, बट उसने अपना माइंड बदल दिया। माई पुअर चाइल्ड, शी सेड इन क्वाइट अ डिफरेंट वॉइस। पहले तो वो बहुत नाराज थी, बट अब उसने क्या बोला, ओ माई पुअर चाइल्ड, ओ बेचारा बच्चा, हाउ कोल्ड यू लुक, कितने ऐसा जमे हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप दिख रहे हो ना बेटा, यहाँ पे पूरा व्हाइट एंड व्हाइट है ना, सफेद हो रखा है। तो उसने क्या बोला, अरे कितनी ठंड है। हाँ, और उसका आवाज में भी बहुत नरमी आ गई थी। आप तुम देखो कितने सफेद पड़ गए हो ठंड की वजह से। कम एंड सिट विथ मी हियर ऑन द स्लेज। उसने क्या बोला, आ जाओ मेरे पास बैठो, इस स्लेज में बैठ जाओ। एडमंड डेयर्ड नॉट डिसोबे। अब वो बहुत घबरा गया था, उसने सोचा मन में जो भी कुछ सोच रहा था, लेकिन अभी क्या सोचा, बाप रे इसकी तो बिल्कुल भी मुझे डिसोबे नहीं करना चाहिए, यानी इसकी आज्ञा को मुझे पालन करना है। सो he stepped on to the sledge and sat at her feet, and she put a fold of her fur mantle around him and tugged it in. तो यहाँ पे क्या हो रहा, तो उस एडमंड ने सोचा बाप रे मुझे तो इसकी बात माननी ही है ना, मुझे इसका आज्ञा माननी है।
तो उसने क्या किया, चुपचाप स्टेप ऑन द, यानी वो देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ना स्लेज देखो, इसके कोई व्हील्स नहीं है और ये जो है एनिमल के द्वारा खींचा जा रहा है ना। तो उसने क्या किया, वो चुपचाप स्लेज के ऊपर चला गया और उसके फीट पे, यानी वो जो जहां पैर रखी थी उसने, वहां जाके वो बैठ गया। एंड शी पुट अ फोल्ड ऑफ हर फॉर्मेंटल, यानी फॉर्मेंटल क्या है, एक कोट है, देखो बेटा जो कोट होता है ना, जैसे हम लोग पहनते हैं ठंड के समय, एक ओवर कोट जिसके स्लीव्स नहीं होते, तो कभी कभी अपने पापा को भी आपने देखा होगा कि ठंड में जैसे अगर कम ठंड लग रही है तो पापा फुल शर्ट पहन लिया और ऊपर से एक हाफ जैकेट टाइप का कुछ पहन लेते हैं जिसके स्लीव्स नहीं होते, तो वो वैसे ही पूरे फर से बना हुआ था, इसलिए फॉर्मेंटल बोल रहे हैं। अराउंड हिम एंड टग्ड इट इन, टग्ड का मतलब होता है कवर कर लेना, उसको ठंड लग रही थी ना, उसको पूरे से कवर कर दिया। दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे वो टक कर रही है उसको, है ना, ढक रही है। Perhaps something hot to drink, said the queen. अब क्वीन क्या बोल रही है उसको ढकने के बाद, उसने बोला कुछ तो गर्मा गर्म हो जाना चाहिए, है ना, पीने के लिए। Yes, please, your majesty, said Edmund, whose teeth were chattering. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बोलते हुए एडमंड क्यों ऐसा बोल रहा था, क्योंकि उसके दांत पूरा कट 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 कट, जैसे देखो ठंड जब बहुत लगती है ना हमें, ऐसा आवाज आता है ना, ठंड के कट 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 ऐसा आवाज, तो उसके दांत भी ऐसे कटकटा रहा था। The queen took out a very small bottle which looked as if it were made of copper. तो उसने क्या किया, उसने अपने जैकेट में से एक छोटा सा बॉटल निकाला जो कैसे दिख रहा था, वो कॉपर का बना हुआ। Holding out her arm, she let one drop fall from it on the snow. और उसने क्या किया, उसी में से उसका ढक्कन खोल के एक एक बूंद उसने स्नो पे गिराया, यानी आसपास जो बर्फ है उसके ऊपर गिराया। The moment it touched the snow, there was a hissing sound. जैसे ही वो जादुई मैजिकल जो ड्रॉप स्नो पे गिरा, वहां से एक हिसिंग करके ऐसा आवाज आया। And there stood a jeweled cup full of something that steamed. और देखते ही देखते ऐसे जादू धुआं से भर गया और वहां से एक कप निकल आया, ठीक है, that steamed, यानी उसमें से ऐसा धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहे, ऐसा हिसिंग हो रहा है, इसमें से कुछ तो भी निकल रहा है। The dwarf handed it to Edmund with a bow. तो ड्रॉफ्ट यानी ये देखो बोना, यहाँ पे दिख रहा है ना बोना, हाँ, तो ये बोने ने क्या किया, वो कप को उठाया और एडमंड के हाथ में दे दिया। विद अ बो, बो मतलब ऐसे झुककर किसी को रेस्पेक्ट देना। एंड नॉट अ वेरी नाइस स्माइल, और लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि दैट द ड्रॉफ्ट वाज वेरी हैप्पी, हाँ मतलब थोड़ा मिस्टीरियस सा स्माइल कर रहा था। Edmund felt much better as he began to sip the hot drink. But Edmund ने जैसे वो ड्रिंक लिया, उसको बहुत ही अच्छा फील होने लग रहा था। It was sweet and foamy and creamy and it warmed him right down to his toes. तो कैसा था वो, थोड़ा सा स्वीट था, फोमी, फोम फोम जैसे होता है, एंड क्रीमी, क्रीमी टेक्सचर था, एंड इट वार्म्ड, वार्म मतलब उसको गर्माहट फील हो रहा था। राइट डाउन टू हिज टोज, मतलब ऊपर से लेके पैर से लेकर नीचे तक पूरा उसको गर्माहट सा, बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था, वार्म सा फील हो रहा था। What would you like to eat? Best like to eat, said the queen presently. Presently means immediately. उसके बाद तुरंत उसने, क्वीन ने क्या पूछा, अच्छा आप क्या खाना पसंद करोगे? एडमिन ने क्या बोला देखो, टर्किश डिलाइट प्लीज योर मैजेस्टी, said एडमिन। उसने क्या बोला, प्लीज मुझे टर्किश डिलाइट दिलाइए, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। द क्वीन, अब टर्किश डिलाइट क्या होता है, यहाँ पे यहाँ यू कैन फाइंड हियर, इट इज अ टाइप ऑफ अ डिश which is where it is produced in Turkey and Iran, इसलिए देखो टर्किश डिलाइट ये हमें पता ही चल रहा है, पर्शिया। सिंस द लेट 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था ये डिश, और ये होता क्या है, टर्किश डिलाइट। और लोकम इज अ जेली कैंडी विथ चॉप्ड पिस्ताचो, मतलब पिस्ताचो को छोटे छोटे, जिसको हम पिस्ता बोलते हैं हिंदी में, तो पिस्ताचो को एकदम बारीक बारीक काट के उसके बीच में दिया रहता है। इट इज कोटेड विथ पाउडर्ड शुगर ऑन आउटसाइड, और बाहर क्या आता है, शुगर की कोटिंग उसमें डली रहती है, तो वो ये टर्किश डिलाइट। यहाँ पे जब रेसिपी बता दिया तो आप खुद भी बना सकते हैं, है ना। सो लेट्स सी। The queen let another drop fall from her bottle on the snow, and instantly there appeared a round box tied with green silk ribbon, which turned out to contain several pounds of the best Turkish delight. तो जैसे क्वीन ने सुना कि उसको टर्किश डिलाइट अच्छा लगता है, तो उसने फिर से बॉटल को ओपन किया और वो फिर से एक ड्रॉप स्नो पे डाला,
क्वीन ने, और जैसे डाला अगेन वैसे हिसिंग साउंड, और धुआं धुआं, और उसके बीच में से क्या निकला, एक राउंड बॉक्स निकला, मतलब गोल सा एक बॉक्स निकला, और जो किससे बंधा हुआ था, ग्रीन कलर के सिल्क रिबन से वो बंधा हुआ था, एंड उसके अंदर क्या था, सेवरल पाउंड यानी काफी सारे टर्किश डिलाइट पूरे भरे हुए थे। ईच पीस वॉज स्वीट एंड लाइट टू वेरी सेंटर। तो उसने क्या बोला, वो खाने में इतने टेस्टी थे, एकदम स्वीट और बिल्कुल लाइट, ऐसा लग रहा था जैसे मुंह में डालते वो एकदम पूरा मिल जा रहा है, घुल जा रहा है मुंह में। एडमंड हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग मोर डिलीशियस। और एडमंड ने इससे पहले इतना टेस्टी कभी कोई नहीं खाया था। टर्किश डिलाइट तो वो लिया था, बट इतना टेस्टी उसने कभी नहीं खाया था। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। While he was eating, the queen kept asking him questions. तो जब एडमिन टर्किश डिलाइट, क्योंकि उसको बहुत टेस्टी लग रहा था, ये देखो आप दिख रहा होगा, ये राउंड सा एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारा टर्किश डिलाइट है, और एडमिन देखो, एडमिन कितने मजे से खा रहा है। तो एडमिन बड़े मजे से, उसको बहुत टेस्टी लग रहा था, वो फट 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 खाने की कोशिश कर रहा था। तो उसी समय एट द सेम मोमेंट क्वीन, शी वॉज आस्किंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो बहुत सारे उससे क्वेश्चन पूछी जाती। एट फर्स्ट एडमिन ट्राई टू रिमेंबर दैट इट इज रूड टू स्पीक विथ one's mouth full, but soon he thought only of trying to shovel down as much Turkish delight as he could. अब ये shovel down का मतलब क्या था, shovel down ये फटाफट फटाफट किसी चीज को खा लेना, that is called shovel down. तो पहले तो एडमंड को लगा ये कैसी औरत है, मैं इतना भर भर के इतना टेस्ट लेके खा रहा हूँ, मुझे खाने में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए, ये जो है क्वीन मेरे से क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जा रही है। बट उसको थोड़ा अजीब लग रहा था, बट उसने बोला लेट इट बी, जाने दो, और उसने पूरा अपना ध्यान टर्किश डिलाइट पे डाला, और उसने सोचा जितना हो सके पूरा खा लूं। The more he ate, the more he wanted to eat, and he never asked himself why the queen should be so inquisitive. तो अब क्योंकि ये जो टर्किश डिलाइट था वो थोड़ा जादुई था। तो क्योंकि जादुई था, क्योंकि वो जितना खा रहा है उसकी जो भूख है वो कम नहीं हो रही, उल्टा उसको लग रहा है कि और खाते जाऊं। तो वो खाए जा रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बट उसके मन में ये लग रहा है कि क्वीन जो है वो इतनी इंक्विजिटिव क्यों है, इतनी ईगर क्यों है जानने के लिए। ये मतलब उसको बड़ा ही अटपटा सा लग रहा था। इंक्विजिटिव मीन्स टू ईगर टू नो समथिंग, सम पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी बारे में जानने को इंक्विजिटिव बोलते हैं। She got him to tell her that he had one brother and two sisters. और वो खा भी रहा था और बोल भी रहा था कि मेरे जो है क्या है, that he had one brother, एक भाई है और दो बहनें हैं, that one of his sister had already been in Narnia, और उसने गलती से उसके मुंह से भी निकल गया, वो खाते खाते वो इतना भूल गया था, उसने क्या बोला, अरे मेरी बहन जो है वो तो नार्निया आ भी चुकी है, उसने ऐसा बोला। and had met a faun there, उसने क्या बोला, और उसने फाउन से भी मिल लिया, and that no one except them knew anything about Narnia, उसने क्या बोला, और मेरी यानी कि एडमंड और मेरी बहन लूसी के अलावा और किसी को भी नार्निया के बारे में नहीं पता। You are sure there are just 4 of you? She asked, neither more or less. बट यहां तो वो टर्किश डिलाइट खाने में बहुत ही बिजी था, बट क्वीन एट द सेम टाइम शी वॉज सीरियस। उसने क्या बोला, क्या तुम पक्का बता सकते हो कि खाली तुम 4 ही हो जिसको इसके यहाँ के बारे में पता, और कोई एक्स्ट्रा नहीं है, और 2 को ही पता है इसके बारे में, और सिर्फ तुम भाई बहन सिर्फ 4 ही हो? एडमंड विद हिज माउथ फुल ऑफ टर्किश डिलाइट केप्ट ऑन सेइंग, यस आई टोल्ड यू दैट बिफोर। उसने और मुंह में वो डाले जा रहा था पूरा, मैं तो पहले ही बोला था। तो अभी इसका ध्यान उसमें बिल्कुल नहीं है कि क्वीन क्या चाह रही है, इसका ध्यान पूरा टर्किश डिलाइट में था, और वो कंटिन्यू बोला जाता है, यस आई टोल्ड यू, हाँ मैंने अभी तुमको बोला कि, एंड फॉरगेटिंग टू कॉल हर योर मैजेस्टी, और ऐसा बोलते बोलते टर्किश डिलाइट में इतना खो गया था, अब वो योर मैजेस्टी, क्योंकि देखो आप इसके पहले तक देख सकते हो कि एडमिन जो भी सेंटेंसेस बोल रहा है, जो भी वाक्य बोल रहा था, वो योर मैजेस्टी करके वो बोल रहा था, बट अभी क्या है, वो इतना बिजी हो गया था और साथ में इतना फ्रैंक हो गया था क्वीन के साथ, दैट ही फॉरगेट टू कॉल हर एज योर मैजेस्टी, बट शी डिड नॉट सीम टू माइंड नाउ, और वो क्वीन भी माइंड नहीं करे कि ये मैजेस्टी क्यों नहीं बोल रही, यानी वो नाराज नहीं है। याद है फर्स्ट मीटिंग में कैसा था, शी वॉज क्वाइट फ्यूरियस, उसके आंख फ्लेमिंग, ऐसा लग रहा था आंख से आग निकल रहा है, बट नॉट नाउ, शी वॉज नाउ नॉर्मल। एट लास्ट द टर्किश डिलाइट वॉज फिनिश्ड। अब किसी चीज को तो एंड होगा, है ना, वो इतना जबरदस्त खाया जा रहा था, तो टर्किश डिलाइट अब जो है खत्म हो गया। एंड एडमंड वॉज विशिंग दैट शी वुड आस्क हिम वेदर ही वुड लाइक
सम मोर। तो अब जो है एडमंड को लग रहा था कि काश ये मेरे से पूछे कि क्या तुम और लेना पसंद करोगे। फॉर दिस वॉज एंचेंटेड टर्किश डिलाइट। एंचेंटेड मतलब मैजिकल, जिसमें मैजिक हो। क्या मैजिक था कि वो जितना खा रहा है, जैसे देखो आप कोई भी अच्छी चीज खाओगे तो क्या होगा, पहला पहला तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपका पेट भरा भरा सा लगेगा और एक टाइम आएगा जब आप क्या बोलेगे, उफ और मेरे को नहीं चाहिए। बट यहाँ पे उल्टा है, वो जितना वो उसको खा रहा था ना, उसको उसको और अच्छा लग रहा था, उसको लग रहा था और खाते रहे और खाते रहे। तो इट वॉज अ मैजिकल एन्चेंटेड। आपने देखा भी है कि वो किसी ने बनाया नहीं था टर्किश डिलाइट, उसने एक ड्रॉप डाला था स्नो पे और वहां से जो है इट अपीयर्ड Turkish delight, and anyone who had once tasted it would want more and more of it. इसलिए देखो यहाँ पे बताया भी कि ये ऐसा मैजिकल था that if anyone taste, कोई भी अगर टेस्ट करता है, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, तो उसको और भी खाने का मन करता है। बट शी डिड नॉट ऑफर हिम एनी मोर। लेकिन क्वीन ने उसको नहीं बोला कि तुम्हें और चाहिए क्या, क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उसको चाहिए। बट शी डिड नॉट आस्क। इंस्टेड शी सेड टू हिम, सन ऑफ एडम। उसने देखो अभी फिर से वो बोल रहा है कि सन ऑफ एडम यानी हे मानव, आई शुड so much like to see your brother and sisters. Will you bring them to me? मुझे बहुत मन है तुम्हारे भाई बहन से मिलने का, क्या तुम उन्हें लेकर आओगे मेरे पास? I will try, said Edmund, looking at the empty box. उसने क्या बोला, हाँ मैं कोशिश करूंगा। और वो एम्प्टी बॉक्स यानी वो इनडायरेक्टली वो उसको हिंट दे रहा था कि मुझे और चाहिए। वो बॉक्स की तरफ देखा, वो खाली डब्बा यहाँ पे आपको दिख रहा है, टर्किश डिलाइट खत्म हो गया था, तो उस खाली डब्बे की तरफ वो दिखा के बोल रहा था कि हाँ मैं ट्राई करूंगा। बिकॉज इफ यू डिड नॉट कम अगेन ब्रिंगिंग देम विथ यू, ऑफ कोर्स आई वुड बी एबल टू गिव यू मोर टर्किश डिलाइट। क्या बोलते हैं, अगर तुम अपने भाई बहन को लेके आते हो साथ में तो मैं क्या करूंगी, आई विल गिव यू मोर, मैं तुमको और भी टर्किश डिलाइट दूंगी। आई कैनॉट डू इट नाउ, द मैजिक विल ओनली वर्क वंस। उसने क्या बोला, और मैं तुम्हें टर्किश डिलाइट नहीं दिला सकती, बिकॉज जो है मैजिक एक ही बार काम करता है, बार बार नहीं करता है। इन माई ओन हाउस इट वुड बी अनदर मैटर। हाँ मेरे घर में आप जितना चाहो तो आपको मिल सकता है टर्किश डिलाइट, वहां पे मैजिक कुछ और तरीके से काम करता है। Why can't we go to your house now? said Edmund, क्योंकि एडमंड को टर्किश डिलाइट और चाहिए था। उसने क्या बोला, तो अभी क्यों नहीं हम जा सकते आपके घर? When he had first got onto the sledge, he had been afraid that she might drive away with him to some unknown place from which he would not be able to get back. But he had forgotten about that fear now. स्टार्टिंग में जब वो खड़ा था स्लेज के सामने में और क्वीन उसको अपने तरफ बुला रही थी, शी वॉज ही वॉज अफ्रेड, उसको डर लग रहा था, मैं क्वीन के पास जाऊं कि ना जाऊं, क्वीन अगर मुझे कुछ कर दिया तो कितना सारा डर लगा था सिंपल सा एक स्लेज में जाने में। बट नाउ यू कैन सी कि एडमंड इतना घुल मिल गया था कि अब उसके घर में भी जाने के लिए वो कतरा नहीं था, उसको डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, है ना। इट इज अ लवली प्लेस माई हाउस, सेड द क्वीन। और क्वीन ने क्या बोला, मेरा घर जो है बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा जगह है। देर आर होल रूम्स फुल ऑफ टर्किश डिलाइट। और पता है मेरे रूम में क्या है, हर रूम में पूरा भरा हुआ टर्किश डिलाइट है। मतलब वो एडमंड को लालच दिला रही थी। आई हैव नो चिल्ड्रन ऑफ माई ओन। पता है, और ये क्वीन क्या बोल रही थी, पता है मेरा कोई अपना बच्चा नहीं है। आई वॉन्ट अ नाइस बॉय हुम आई कुड ब्रिंग अप एज अ प्रिंस। उसने क्या बोला, इसीलिए मैं चाहती कि कोई मेरे घर पे आए, तुम जैसा बच्चा, जिसे मैं बड़ा पाल पोस के क्या करूं, उसको प्रिंस बनाऊं। मतलब मेरे जाने के बाद कौन रहेगा, राज्य का देखभाल कौन करेगा, प्रिंस करेगा। एंड हु वुड बी किंग ऑफ नार्निया। और वो बच्चा आगे चल के क्या क्या होगा, क्योंकि मैं क्वीन हूं तो मेरा बच्चा प्रिंस बनेगा और आगे चल के वो क्वीन बनेगा, सॉरी किंग बनेगा नार्निया का। When I am gone, मतलब जब मैं जिंदा नहीं रहूंगी तब वो किंग बन जाएगा। He would wear a gold crown and eat Turkish delight all day long. उसने क्या बोला, पता है उसके साथ क्या होगा, किंग के साथ वो गोल्डन क्राउन पहनेगा, यानी सोने की मुकुट पहनेगा, क्राउन यानी मुकुट, सोने का मुकुट पहनेगा और खूब सारा टर्किश डिलाइट खाएगा, सारा दिन बैठ के खा सकता है। एंड यू आर मच द क्लेवरेस्ट एंड हैंडसमेस्ट यंग मैन। उसने क्या बोला, और मैं सोच ही रही थी कि तुम्हारे जैसे ही कोई हो जो बहुत चतुर हो, क्लेवर हो, एंड हैंडसमेस्ट यानी सबसे सारों में से सबसे खूबसूरत हो, आई हैव एवर मेट। और तुम जो है, मैंने आज तक जितने भी आदमी को देखा था, मतलब लड़कों को देखा था, मेल को देखा था, तुम उनमें से सबसे खूबसूरत हो। आई थिंक आई वुड लाइक टू मेक यू द प्रिंस समडे।
और मैं सोच रही कि तुमको मैं कभी किसी दिन प्रिंस बनाऊं। When you bring the others to visit, पता है ये कब हो सकता है? जब तुम अपने भाई बहन को अपने साथ लेकर आओ। Why not now? said Edmund. तो वो अभी क्यों नहीं हो सकता? क्या अभी नहीं हो सकता? प्रिंस, क्योंकि उसको क्या लग रहा था, अगर मैं प्रिंस बनूंगा तो ये मुझे अपने घर लेके जाएंगे, और हर एक घर के कमरे में क्या है, टर्किश डिलाइट है। आफ्टर ऑल एडमंड जो है उसको टर्किश डिलाइट पे ही ध्यान था, तो उसको इसलिए वो क्या बोला, व्हाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं जा सकते। ओह बट इफ आई टुक यू देयर नाउ, सेड शी, आई शुडंट सी योर ब्रदर्स एंड योर सिस्टर। अरे मैं अगर क्वीन ने क्या बोला, मैं अगर आपको लेके जाई तो फिर आपके भाई बहन से तो मेरी मुलाकात होगी ही नहीं। यू आर टू बी द किंग, क्या भाई तुम आगे चल के राजा बनने वाले हो। यू मस्ट हैव कोर्टियर्स एंड नोबल्स, तो क्या बोल रहे, तो तुम्हारे दरबार में तो कोई होने चाहिए ना, कोर्टियर्स एंड नोबल्स, राज दरबारी होने चाहिए। आई विल मेक योर ब्रदर अ ड्यूक एंड योर सिस्टर डचेस, तो क्या बोला कि मैं तुम्हारे भाई बहन को क्या बनाऊंगी, ड्यूक एंड डचेस। ये जो है इसका मतलब क्या होता है, नोबल मैन एंड नोबल वुमन, यानी जो राज दरबारी होते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, जिनका जो है क्या है, ऑफ हाईएस्ट रैंक, जो पूरे दरबार में जिसको सबसे हाईएस्ट रैंक मिलता है, मंत्री। मतलब एग्जैक्टली किसके बाद, प्रिंस के बाद जिसका पोजीशन होता है वो ड्यूक और डचेस का होता है। तो क्या बोलते हैं, मैं आपको तो किंग बनाऊंगी और आपके नीचे आपके भाई बहनों को क्या बनाऊंगी, ड्यूक और डचेस। डचेस इज द फीमेल gender of duke. Okay, so let's move to the next page. There's nothing special about them, said Edmund. तो Edmund ने क्या बोला, मेरे भाई बहन तो बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। And anyway, I could always bring them some other time. कोई बात नहीं, मैं कभी और लेकर आऊंगा, अभी फिलहाल आपके घर चलते हैं। अब क्वीन जिद पे आ गई, उसने क्या बोला, but once you were in my house, said Queen, you would be enjoying yourself so much that you wouldn't want the bother of going to fetch them. उसने क्या बोला, पता है मेरा घर इतना अच्छा है, तुम जैसे मेरे घर में आओगे तुम वहां इतना एंजॉय करोगे, इतना बढ़िया जगह है कि तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हें वापस भी जाना है, और तुम किसी के बारे में बॉदर ही नहीं करोगे, इसके बारे में चिंता ही नहीं करोगे तुम। You must go back to your own country and come to me another day with them. You understand? उसने क्या बोला, तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें अभी फिलहाल घर जाना है, अपने शहर में जाना है, अपने कंट्री में जाना है, और वापस आना है दूसरे दिन अपने भाई बहन के साथ। But I don't even know the way back to my own country, pleaded Edmund. तो एडमंड ने क्या बोला, अरे लेकिन मैं जाऊंगा कैसे, मुझे तो अपने घर जाने का रास्ता ही नहीं पता, ऐसा एडमंड ने बोला। बिकॉज उसे तो नार्निया के अंदर आना, वो अपनी बहन को पीछा करके वो उसको पता चल गया था कि यहां से आते हैं, बट वापस कहां से जाते हैं उसको तो पता ही नहीं था। सो एडमंड थोड़ा सा पजल्ड हो गया कि हाउ कुड आई गो बैक। दैट्स इजी, आंसर्ड द क्वीन। क्वीन ने बोला, अरे ये बात है क्या, ये तो बहुत ही आसान है। डू यू सी दैट लैम्प, क्या तुम्हें वो लैंप दिख रहा है। शी पॉइंटेड विथ हर वैंड, वैंड मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो चुड़ैल के हाथों में होता है वो डंडा, उससे उसने क्या, देखो वो वैंड को दिखा के बोल रहे थे कि वो दिख रहा है वो लैम्प, ये देखो ये लैम्प है, इसी के बारे में बोल रहा था। एंड एडमंड टर्न्ड, और जैसे दिखाया तो एडमंड भी पलट के देखा उसके अंदर, एंड सॉ द सेम लैम्प पोस्ट अंडर विच लूसी हैड मेट द फोन। उसको फिर याद आया, अरे हाँ ये लैम्प के नीचे ही तो, लैम्प पोस्ट के नीचे ही तो मेरी बहन को कौन मिला था, फोन मिला था। बियॉन्ड दैट इज द वे टू द वर्ल्ड ऑफ मेन। क्वीन ने क्या बोला, हाँ ठीक इसके ही पीछे, इसके बाद क्या है, जहां पे इंसान रहते हैं, इंसानों रहने की जगह है। Now look the other way and tell me if you can see two little hills rising above the tree. और देखो दूसरी तरफ, वहां पे दो पहाड़ दिख रहे हैं, क्या तुम्हें दिख रहा है, जो हिल्स दिख रहे हैं राइजिंग अबव द ट्री, जो पेड़ों के पास है, पेड़ों के ऊपर से दिख रहे हैं दो हिल। आई थिंक आई कैन, सेड एडमंड। एडमंड ने बोला, हाँ हाँ मुझे लगता है कि हाँ मुझे दिख रहा है। माई हाउस इज बिटवीन दोज टू हिल्स। So the next time you come, you have only to find the lamppost and look for those two hills and walk through the woods till you reach my house. तो क्वीन ने क्या बोला, हाँ बिल्कुल वो लैंडमार्क याद रखना, ये जो दो हिल है और पेड़ है, ठीक वहीं से क्या जाता है, नेक्स्ट टाइम जब तुम अपने भाई बहन के साथ आओगे
सब क्या करना, ये लैंप पोस्ट को याद रखना, ये 2 हिल को याद रखना, और बिल्कुल इसके बीच में से होते हुए थ्रू द वुड्स। अब वुड्स मतलब यहाँ लकड़ी नहीं है, यहाँ पे वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो जंगल में से होते हुए तब तक चलते रहना जब तक तुम मेरे घर तक ना पहुंच जाओ। आई माइट हैव टू बी वेरी एंग्री विथ यू इफ यू कम अलोन। और उसने क्या बोला, क्वीन ने क्या बोला, मुझे बहुत गुस्सा आएगा अगर तुम अकेले आए, तुम अपने भाई बहन के साथ अगर नहीं आओगे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। आई विल डू माई बेस्ट सेड एडमंड। एडमंड ने क्या बोला, मैं मैजेस्टी बिल्कुल मैं अपनी पूरी दम लगा दूंगा। एंड यू नीड नॉट टेल देम अबाउट मी। और क्वीन ने फिर से वार्न क्या किया, याद रखना कि तुम्हें मेरे बारे में उनके सामने बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है। इट वुड बी फन टू कीप इट अ सीक्रेट बिटवीन अस टू, वुडंट इट। उसने क्या बोला, ये एक सीक्रेट है, उनको बिल्कुल नहीं बोलना हम मेरे बारे में। देखो याद रखना, कभी भी ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, किसी बड़े ने या किसी फ्रेंड ने बोला ये सीक्रेट है, ये मत बताना अपनी मम्मी पापा को। अगर किसी ने भी, स्पेशली बड़ों ने अगर ऐसा कुछ बोल दिया, कोई भी इंसिडेंट आपके सामने में होता है और अगर बड़े आपको ऐसा बोलते हैं कि ये नहीं बताना अपने बड़ों, अपने मम्मी पापा को, ये सीक्रेट है, तो डेफिनेटली आपको जाके सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा काम के लिए कभी भी कोई सीक्रेट नहीं होता है, गलत या बुरे काम के लिए ही सामने वाला आपको बोलते हैं कि इसकी छिपा के रखो, ये सीक्रेट है। तो यहाँ पे भी देखो, क्योंकि क्वीन जो थी शी वॉज मिस्टीरियस एंड वो एक चुड़ैल थी, विच थी, इसीलिए वो क्या चाह रही थी कि उसके घर वालों को उसके बारे में ना पता चले। उसने इसलिए क्या बोला कि ये एक सीक्रेट है, मेक इट सरप्राइज फॉर देम। क्वीन ने क्या बोला, ये हम दोनों मिलके ना उनको सरप्राइज देंगे। A clever boy like you will easily think of some excuse। और उसने क्या बोला, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही क्लेवर हो, तुम बहुत ही होशियार हो, है ना, और मुझे लगता है तुम आराम से कोई ना कोई बहाना बिल्कुल बना सकते हो। If your sister has met one of the fawns, she may have heard strange stories about me। तो देखो उसको कोई शक ना हो, इसलिए उसने पहले ही, क्वीन ने क्या बोला कि अगर तुम्हारी बहन किसी फॉन से मिली है तो फिर डेफिनेटली फॉन ने मेरे बारे में गलत सलत बताया होगा, अजीबोगरीब स्टोरी, नेस्टी स्टोरी, गलत स्टोरी, गंदी स्टोरी बताई होगी। दैट माइट मेक हर अफ्रेड टू कम टू मी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्वीन क्या बोल रही है, पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे बारे में उसने गलत गलत स्टोरी सुनी होगी, और अगर उसको पता चल जाएगा कि मैंने बुलाया है तो वो डर के मारे आएगी ही नहीं, तो इसीलिए मेरे बारे में उसको कुछ नहीं बोलना। While she spoke, she signaled to the dwarf to drive on, and as the sledge swept away, the queen waved to Edmund, calling out, "Next time, don't forget, come soon." तो जब तक वो बात कर रही थी, कौन, क्वीन, एडमंड से बात करते करते तुरंत क्वीन ने ड्राफ्ट को इशारा किया कि स्लेज को खींचो, एंड स्वेप्ट अवे मतलब देखते देखते जो स्लेज है ड्राफ्ट ने खींचा और जो स्लेज है वो तेजी से आगे बढ़ गया। और जाते जाते क्वीन ने वेव किया, अपने हाथों को हिलाया और क्या बोला एडमंड को, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, डोंट फॉरगेट, बिल्कुल भूलना नहीं, कम सून, और जल्दी आना, ऐसा वो बोलते हुए वो निकल जाती है। एडमंड वॉज स्टिल स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मतलब किसी चीज को टकटकी लगाकर देखना, वो स्टिल स्टेयरिंग आफ्टर द स्लेज, और वो स्लेज को टकटकी लगाते हुए जब तक वो स्लेज दिख रहा था उसको देखता रहा। When he heard something calling his name, और वो तब तक देखता रहा जब तक उसके कानों में कोई आवाज नहीं आया, ऐसा लगा कि उसको किसी ने बुलाया। Lucy was coming towards him from another part of the wood। wood देखो मैंने अभी बताया था फॉरेस्ट, तो वो फॉरेस्ट की तरफ ही जा रहा था, तो उसको लगा कि किसी ने किसको आवाज दिया। उसने पलट के क्या देखा, लूसी उसकी तरफ ही आ रही है, यानी उसकी बहन उसकी तरफ ही आ रही है। कहां से, वुड से, यानी कि जंगल से होते हुए उसकी तरफ आ रही है। ओ एडमंड, शी क्राइड, सो यू हैव गॉट इनटू। अरे एडमंड, अच्छा उसने क्या बोला, ओ एडमंड, क्राइड मतलब यहाँ पे क्राई नहीं है, यानी चिल्ला के बोलना, ओ एडमंड यू हैव गॉट इनटू, तुम भी यहाँ पे आ गए नार्निया में। Isn't it wonderful? देखा ना कितना बढ़िया है ना, ये वंडरफुल है ना। All right, said Edmund. You were right. उसने क्या बोला, हाँ हाँ ठीक है तुम सही बोल रही थी। And it is a magic wardrobe after all। उसने क्या बोला, हाँ ये तो होना ही था, मैजिक wardrobe है, यानी मैजिक अलमारी है। I will say I'm sorry if you like it। तो क्या बोला कि हाँ बिल्कुल मुझे उसके लिए भी सॉरी लग रहा है।
बट वेयर ऑन अर्थ हैव यू बीन? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। तो लूसी क्या बोलती है कि कहाँ थे तुम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। यहाँ पे अर्थ यानी कि कहने का मतलब है कि मैं हर तरफ तुम्हें देख रही थी, तुम कहीं मुझे मिले नहीं। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। If I had known you had got in, I would have waited for you, said Lucy. तो लूसी ने क्या बोला, अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पे हो तो मैं तुम्हारे लिए वेट करती। Who was too excited to notice how snappingly Edmund spoke or how flushed and strange his face was. तो बहुत ही एक्साइटेड थी और वो देख रही थी एडमिन का चेहरा थोड़ा गुस्से में, स्नैपिंगली यानी गुस्से में, एंड ऐसा लग रहा था जैसे कोई टेंशन है उसको। ठीक है, उसका फेस जो है बहुत ही लाल पीला ऐसा हुए जा रहा था, कंप्लेनिंग जैसा लग रहा था। आई हैव बीन हैविंग लंच विथ डियर मिस्टर टुमनुस द फॉन। फॉन का नाम क्या था? टुमनुस। ये मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही बोला था। तो उसने क्या बोला, मैं तो बहुत बढ़िया सा टुमनुस के साथ मैंने एक क्या किया, लंच किया। एंड द व्हाइट विच हैज डन नथिंग टू हिम for letting me go. So he thinks she can't have found out and perhaps everything is going to be all right after all. तो उसने क्या बोला, पता है क्या हुआ, मैं मिस्टर टुमनस के साथ हम बहुत बढ़िया सा हमने लंच लिया, और वो जो व्हाइट विच है ना, यानी जो सफेद चुड़ैल, यानी ये किसके बारे में बोल रही थी, वही मिस्टीरियस वुमेन, क्वीन ऑफ नार्निया। वो क्वीन नहीं है, वो खुद को क्वीन समझती है। तो क्या बोल रहा, उसके बारे में बोल रही थी कि व्हाइट विच है ना, उसने हमको कुछ नहीं किया और हमें जाने दिया। यानी क्यों जाने दिया? सो ही थिंक्स, और उसको मिस्टर टुमनुस को क्या लगता है, शी कांट हैव फाउंड आउट, उसने इनको ढूंढा ही नहीं, यानी मिले ही नहीं थे, दिखे ही नहीं तो पता नहीं क्वीन जो है क्या कर देती, किसको, मिस्टर टुमनुस को और लूसी को। एंड परहैप्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, और उसने क्या बोला, इसीलिए सब कुछ ठीक होने वाला है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। द व्हाइट विच सेड एडमंड हु शी। तो एडमंड देखो बिल्कुल वो बिल्कुल अनजान सा बन रहा था। व्हाइट विच, कौन व्हाइट विच? शी इज अ टेरेबल पर्सन, सेड लूसी। उसने कहा, तुम्हें व्हाइट विच के बारे में नहीं पता, वो बहुत ही भयानक सा पर्सन है। शी कॉल्स हर सेल्फ द क्वीन ऑफ नार्निया। वो खुद को क्या बोलती है कि मैं क्वीन हूं नार्निया की। दो शी हैड नो राइट टू बी क्वीन एट ऑल, जबकि वो तो बिल्कुल क्वीन के लायक ही नहीं है। एंड ऑल द फॉर्म्स एंड ड्रायंट्स एंड नेम्स एंड ड्राफ्ट एंड एनिमल, एटलीस्ट ऑल द गुड वंस हेट हर। और पता है वो क्वीन हो ही नहीं सकती क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं करते, चाहे फॉन बोलो, चाहे ड्राइड्स बोलो, नीड्स बोलो, ड्राफ्ट बोलो, एनिमल बोलो, कोई भी उसे पसंद नहीं करते, सब उसे हेट करते हैं। अब ये ड्राइड्स एंड नीड्स कौन है? ये सारे जो है ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर आप बोल सकते हैं, एक तरह का स्पिरिट है, यानी ऐसा इमेजिनरी कैरेक्टर आप बोल सकते हैं। ठीक है, सब उसको नापसंद करते हैं, यानी ये सारे लोग हैं क्योंकि वो मैजिकल वर्ल्ड था, वहां के लोग भी थोड़े मैजिकल थे, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, यानी थोड़ा फॉल्सी कैरेक्टर है। शी कैन टर्न पीपल इनटू स्टोन, पता है वो क्या कर सकती है, वो इंसान को स्टोन में बदल सकती है। एंड शी हैज मेड अ मैजिक, और उसने मैजिक किया है, पता है क्या मैजिक किया है, सो दैट इट इज ऑलवेज विंटर इन नार्निया। और ये मैजिक क्या था, वो उसने कुछ ऐसा मैजिक किया कि नार्निया में हमेशा ठंडी रहेगी, विंटर ही रहेगा, बट इट नेवर गेट्स टू क्रिसमस। और ठंड तो है, और ठंड में क्या होती है, क्रिसमस होता है, बट उसने ऐसा मैजिक किया कि हमेशा ठंड रहेगा लेकिन क्रिसमस कभी भी नहीं आएगा। शी ड्राइव्स अबाउट ऑन ए स्लेज, और वो स्लेज में जाती है, ड्रॉन बाय अ रेनडियर, जैसे सैंटा क्लॉज जाते हैं स्लेज में रेनडियर खींचता हुआ, वैसे ही रेनडियर खींच रहे उसके स्लेज को। विथ हर वैंड इन हर हैंड, और उसके हाथ में क्या है, जादुई छड़ी, वैंड है, एंड अ क्राउन ऑन हर हेड, और उसके सर में क्या है, एक मुकुट है। एडमंड वॉज ऑलरेडी फीलिंग अनकंफर्टेबल, अब एडमंड को ना बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, अनकंफर्ट फील हो रहा था, फ्रॉम हैविंग ईटन टू मेनी स्वीट्स, क्योंकि उसने पूरा भर भर के डब्बा भर के उसने क्या खाया था, टर्किश डिलाइट, इतना ज्यादा खाने की वजह से उसको बड़ा ही अनकंफर्ट फील हो रहा था। एंड व्हेन ही हर्ड दैट लेडी ही हैड मेड फ्रेंड्स विद वाज अ डेंजरस विच,
He felt even more uncomfortable. अब एडमंड को और भी बुरा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, उसको लग रहा था जिसे मैं क्वीन समझ रहा था वो एक चुड़ैल है, बाप रे, ऐसा उसे फील आ रहा था. बट ही वॉन्टेड टू टेस्ट दैट टर्किश डिलाइट, लेकिन क्या करता, अब उसको उसकी जो टर्किश डिलाइट है ना उसकी कमजोरी बन गई थी. उसको लग रहा था कि मुझे तो टर्किश डिलाइट चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब दुनिया में टर्किश डिलाइट से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, उसको ऐसा लग रहा था. लेट्स गो होम ही सेड, उसने क्या बोला एडमंड ने, चलो चलो घर चलते हैं. यस लेट्स सेड लूसी, लूसी ने क्या बोला, हाँ हाँ चलो चलो हम लोग चलते हैं. आई एम ग्लैड यू हैव गॉट इन टू. और वो जाते जाते लूसी क्या बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम भी अंदर गए थे. द अदर्स विल हैव टू बिलीव इन नार्निया नाउ. देखो अब मैं अकेली बोल रही थी तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, अब तुम भी हो, तुम भी बोलोगे तो लोग यकीन करेंगे, हाँ नार्निया नाम का कोई जगह भी है. दैट बोथ ऑफ अस हैव बीन देयर, और मैं अकेली नहीं बल्कि तुम भी उसके उसमें गए थे. What fun it will be! Wow, कितना मजा आया था. But Edmund secretly thought that it would not be as good fun for him. तो उसको क्या लग रहा था एडमंड कि मेरे लिए तो मजेदार नहीं था. क्यों? क्योंकि उसने एक प्रॉमिस करके आया था, है ना. What was that promise? That he will bring his sibling along with him. Where? To that मिस्टीरियस क्वीन, है ना. उसने ये सोच के रखा था, उसने प्रॉमिस किया था कि हाँ मैं बिल्कुल लेके आऊंगा, नहीं तो बहुत नाराज हो जाएगी क्वीन, ऐसा उसने बताया था. इसीलिए he would have to admit that Lucy had been right in front of all the others, and he felt sure the others would be on the side of fawns and animal. But he was already more than half on the side of witch. अब इसका मतलब क्या है, उसने क्या बोला कि मुझे लगता है नार्निया में लूसी जो है सबके सामने में, यानी सब एक तरफ होंगे, लूसी और वो फॉन सब एक तरफ होंगे, एनिमल सारे सारे लूसी की तरफ ही होंगे और लूसी भी उनके साइड ही होगी. बट ये अकेला जो है वो किसकी तरफ है, विच की साइड में. अब वो क्यों ऐसा है, उसको क्योंकि टर्किश डिलाइट उसकी कमजोरी बन गई थी, इस वजह से. बाय दिस टाइम दे हैड वॉक्ड अ गुड वे. और इस समय तक क्या हुआ, चलते चलते यानी बात कर रहे थे और चल रहे थे, यानी काफी गुड वे, यानी काफी दूर तक वो चले गए थे. देन सडनली दे फेल्ट कोट्स अराउंड देम इंस्टेड ऑफ ब्रांचेस. और चलते चलते उनको अचानक से फील हुआ, अरे कपड़े मेरे चेहरे में लग रहे हैं. यानी अब क्या देख, चलते चलते वो वार्डरोब के अंदर आ गए थे. अभी उनको ब्रांचेस, यानी अब तक क्या लग रहा था, ट्री को क्रॉस कर रहे थे तो ब्रांचेस उनके चेहरे पे आ रहा था, उनको टच हो रहा था. अभी वो ब्रांचेस फील नहीं हो रहे, अभी कपड़े फील हो रहे. एंड द नेक्स्ट मोमेंट they were both standing outside the wardrobe in the empty room. और देखते ही देखते वो खुद को अपने घर के कमरे में उन्होंने खुद को फील किया कि हम कमरे में आ गए हैं वार्डरोब से बाहर. कम ऑन देन सेड लूसी, लेट्स फाइंड द अदर्स. तो लूसी ने क्या बोला, चलो हम बाकियों को भी इसके बारे में बोलते हैं. What a lot we shall have to tell them. बाप रे, हमारे पास कितना कुछ है ना इस नार्निया के बारे में बताने के लिए. And what wonderful adventures we shall have now that we are all in together. बोले और कितना मजा आएगा जब हम सब मिलके साथ होके नार्निया में जाएंगे, है ना, कितनी मजेदार लगेगी. एंड ये मैंने पहले बताया था, ये एक एक्सर्ट है. अगर आपको इसके बारे में पूरी पता करना है तो आप नार्निया, इंग्लिश मूवी है वो, हिंदी में भी डब्ड है, आप चाहे तो आप देख सकते हैं और आपको आइडिया आएगा और आपको बहुत मजा आएगा. क्योंकि किसी चीज को पढ़ने से ज्यादा अगर हम उसकी पिक्चर देखते हैं, पिक्चराइजेशन देखते हैं, और आप वहां पे देखोगे कि भी वॉन कैसा दिखता है, ड्राइड्स कैसे दिखते हैं, नेड्स कैसे हैं, ड्रॉप्स कैसे दिखते हैं, आप देखोगे कि वो कैरेक्टर ना थोड़े से ह्यूमन एंड थोड़े से एनिमल, थोड़े मिक्सचर वाले हैं. तो आप देखोगे आपको बहुत मजा आएगा, है ना. एंड आई होप you have enjoyed and you have understood this chapter. So if you have any doubt, kindly mention your doubts, your whatever question you want to ask in the comment section. So till then, bye bye to all of you.